अंदर है तो पॉसिबिलिटी है, हो सकती है। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। मैम वो तो उसमें भी दिखाया था मैम, क्या बोलते हैं, एक मूवी है सुपर 30, उसमें भी बताया था कि है ना, राजा का बेटा ये राजा नहीं बन सकता, कोई और भी बन सकता है। Let's वो start रहता है। our beta. Let's do Omkaram first and then we'll discuss. Okay, come on. Sai Ram. Yes. Yes, Cherry. Sai Ram beta, Sai Ram. मैम जिसने हमको डिफाइन करके व्हाट इज गवर्नमेंट ना, हम क्या बोलेंगे समझ नहीं One आता। at a time. One at a time. Cherry is asking question. Just pay attention, beta. Okay. Yes, Cherry. मैम एक्चुअली यहाँ बैंड वाले बज रहे हैं। क्या बज रहे हैं? क्या हो रहा है? मैम यहाँ किसी की शादी है तो हम बैंड बज रहे हैं। ओके 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 ओके, हाँ शादियां बहुत सारी है। ओके, तो डिस्टरबेंस क्रिएट मैम जैसे किसी ने हमसे पूछा व्हाट इज गवर्नमेंट, तो हम क्या डिफाइन करेंगे? What is government? Okay. Yes, anybody? What is government? If you have to define, what do you ये बोल understand? सकते हैं कि मैम गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु मेक लॉज एंड वी हैव टू फॉलो दीज लॉज। Yes, yes. Okay, anybody? What is government? How will you define? Ma'am, can I? Yes, beta. Ma'am, the group of people who rule or control a country. Okay, fine. Anybody else? मैम गवर्नमेंट मेक्स लॉस एंड वी हैव टू फॉलो इट। That is the function. Yes. But who is government? Who is government? Who is government? The government is the system of people. Government organized country, generally a state. It can also disturb the leadership of a supervision organization, such Yes. as the United Very good. It's an Nations. organization. Government Ma'am, is but ये an कुछ अलग organization. शब्द नहीं है। Institution, organization. ठीक है, कुछ ग्रुप है लोगों का। मैम इसका मीनिंग ही नहीं पता मुझे। दिव्य बोलना। मैम आप बता दीजिए। क्या? मैम कैन आई? मैम कैन आई? मैम कैन आई? मतलब तो दिव्य ने बोला ये उसका कोई मीनिंग भी ही नहीं पता। कैन आई मैम? मैम मैम कैन आई? Yes, Pravanshika. Yes, ma'am. Every country needs a government to make decisions and get things done. The government also takes action on social issues. The government also has the job of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful with the other countries. मैम ये वाला आंसर तो कॉपी में है। See, what do you understand by the word government? So, government is an organization, like you all said, government is a group of people, not a single person. It's a group of people. It's an organization, it is an institution that makes laws. जो laws बनाता है, so that our country will run properly, so that administration of the country will run properly. Okay, so what is government? Government is an organization. It is an institution that makes laws to run the country properly. Okay. ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है? स्कूल इज योर इंस्टीट्यूशन. स्कूल इंस्टीट्यूशन कौन सा इंस्टीट्यूशन है? टू इम्पार्ट एजुकेशन. एजुकेशन देने का एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन है जो कि लोगों को या बच्चों को एजुकेशन देता है. ठीक है. मैम आपने मेक लॉज के बाद क्या बोला? मैम इधर एक क्वेश्चन है, नेम टू एस्टिमेशन फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. Just wait, Manav. We are discussing first question. What do you understand by the word government? This was the answer of the Cherry was asking the same question.
ओके, तो लेट अस The government main institution who take decision according to the rules and Yes. written government that affects our daily life. मैंने बोला कि गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन और एन ऑर्गेनाइजेशन that makes laws to run the administration of the country, to run the administration of the country. ये एक इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन है या ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि हमारे देश के लिए या कंट्री के लिए रूल्स बनाते हैं, कानून बनाते हैं, जिसके कारण पूरी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन चलाया जाता है। मैम ये वाला आंसर लिखने की मैम जो लिखा हुआ है कॉपी में ऑलरेडी वो रहने दे। हाँ, कोई भी रहने दो। देखो आपकी अंडरस्टैंडिंग किस में है, आप अगर अंडरस्टैंड करते हो देन इट इज ओके, ठीक है। हमारी अंडरस्टैंडिंग यस ओके। आप देखोगे सी इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर you will find, you must have heard the word government mentioned several times, है ना। गवर्नमेंट के बारे में हम बहुत सुनते हैं कि सरकार ने ये किया। सरकार है क्या एक्चुअली? तो सरकार क्या है? एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है जो क्या करती है, जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि वो रूल बनाती है। किसके लिए? हमारे लिए, हमारे लिए, फॉर द कंट्रीमैन, फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। सिटीजन्स के लिए, हाँ, सिटीजन्स के लिए, फॉर द पीपल इन द कंट्री, ओके, फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली, टू रन द गवर्नमेंट। इस वाले पे आ गई क्या? लिस्ट ऑफ 5 ways in which you think the government affects your daily life. मैम इसकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। बेटा हाँ, इधर से मुझे भी आवाज किसी की clear नहीं आ रही। मैम अब आ रही है क्लियर? मैम अब आ रही है क्लियर? अब आ रही है माना। मैम वो मेरे ईयरफोन्स पता नहीं इसमें क्या हो रहा है। मैम इट प्रोटेक्ट्स आवर बाउंड्रीज। यस मानव वेट। हाँ, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। अब आगे जो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट है, लिस्ट 5 ways in which you think the government affects your daily life. गवर्नमेंट आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करती है, वो क्या काम करती है, what are the functions of the government. Now in the functions of the government you need to write this point which you have discussed just now. अभी आपने जो बोला ना कि गवर्नमेंट प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज, ये उसके काम है। Functions. हाँ, फंक्शंस मींस क्या है, उसके कार्य है, उसके काम है, उसकी ड्यूटीज है। लेकिन उसका जो फोरमोस्ट काम है जिसके कारण वो गवर्नमेंट कहलाती है, दैट इज टू मेक लॉ। वो गवर्नमेंट ही, मैं रूल नहीं बना सकती कि मैंने कोई रूल बना दिया एंड ऑल हैव टू फॉलो, क्योंकि मैं गवर्नमेंट नहीं हूं। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। मैंने तो गवर्नमेंट बनाई है, ठीक है। तो मैं कैसे पार्ट हूं? इनडायरेक्टली उससे रिलेटेड हूं। बट जिन लोगों को मैंने रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा है, चुनकर भेजा है, उन्होंने एक सरकार बनाई, एक इंस्टीट्यूशन बनाया, वहां पे उन्होंने सभी लोगों के लिए कुछ डिसाइड किया एंड दैट देन दे फ्रेम्ड अ लॉ। मैम हर पर्सन का मतलब अपना एक वो ड्यूटी होती है ना कि मैम ये रूल्स बनाएगा। मैम ऐसे हर कोई, मैम जैसे कोई वो हर कोई गवर्नमेंट का पार्ट है तो वो हर कोई रूल नहीं बना सकता है। हर कोई रूल नहीं बना सकता। अपने लिए बनाएगा ना। मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैंने अपने लिए बना लिया एक रूल। आपको कोई स्कूल प्रॉब्लम बनाते हैं मैम, जैसे गवर्नमेंट स्कूल बनाते हैं। हाँ, तो ये मैम वो ऐसे भी काम कर सकते हैं गवर्नमेंट, मतलब जैसे जिससे है ना लोग खुश हो। जैसे स्कूल बनाए, जिन लोग गरीब लोग हैं उनको है ना पढ़ना है, लेकिन है ना वो उनके वो नहीं है, तो फिर उससे है ना लोग है ना मतलब उन्हें ज्यादा वोट करेंगे और वो सोचेंगे ये सही। आप समझ में आ रहा है? देखो गवर्नमेंट का मतलब क्या, जैसा हमने उस दिन भी देखा कि गवर्नमेंट कौन है, जो हम बनाकर भेजते हैं, क्योंकि सरकार हमारी है, हमारे पास पावर है टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अब हमने जिनको रिप्रेजेंटेटिव्स बनाकर भेजा है वो क्या हमारी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, इसलिए हमने उनको चुना है। ऐसे पूरे देश से लोग चुनकर आते हैं जो अपने अपने एरिया की प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर प्रॉब्लम किसी एक जगह की है
तो वो एक जगह में काम करने से सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन अगर प्रॉब्लम सारी जगह की है तो एक लॉ बना दिया जाता है जो सभी के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, अगर घर में सिर्फ मेरी एक अकेले की प्रॉब्लम है, 4 लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे लिए कोई नहीं सोचेगा। ठीक है, लेकिन अगर 4 लोगों को प्रॉब्लम है, एक को नहीं है, तो 4 की प्रॉब्लम्स मायने रखती है। आर यू गेटिंग मी? मैम अगर Yes, मतलब ma'am. 2 लोग मैम Yes, मतलब ma'am. 10 लोग हैं, ma'am. इसमें 5 लोगों को प्रॉब्लम है और 5 लोगों को नहीं है, तो फिर जब भी लेगी वो मतलब हाँ हाँ, तब भी ले सकती है। हो Ma'am. सकता है उसके पास कुछ और मैम मैटर आ हमें जाए उस टाइप की जिसपे काम यूनिटी करना चाहिए ज्यादा होती है। मैम अपनी बात को रखने Ma'am. के लिए यूनिटी चाहिए होती है उन लोगों को। यूनिटी चाहिए होती है, Yes, उस पे मत होता है ना। उसके लिए एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, फिर उसके लिए डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, तब जाके फाइनली कोई रूल लॉ के रूप में आता है, कोई बात लॉ के रूप में आती है। मैम कुछ भी नहीं होता। यस बेटा चेरी। मैम मैम तो हम सेकंड पार्ट में बस उसका यही लिख दे कि मैम गवर्नमेंट लॉ बनाती है। नहीं, और भी है ना इसमें। देखो सेकंड पार्ट में पूछा है गवर्नमेंट आपकी लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है, तो वो कौन कौन से काम करती है जो कि पब्लिक को रिलेटेड मानव कौन बोल रहा है अभी? जस्ट वेट मानव। मैम तन्मय। एक हाँ जस्ट वेट करो, मैं एक एक से पूछ रही हूँ, ठीक है, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सो यू टेक योर पेंसिल इन योर हैंड एंड नोट इट डाउन। कब? जब यस हो जाएगा। अक्षा, एनी पॉइंट यू वांट टू गिव? वो कौन सा तरीका है जिससे लोगों का जीवन सरकार प्रभावित करती है? एनी वन पॉइंट, गिव मी एनी वन पॉइंट। इफ यू हैव पॉइंट से यस, इफ नो देन बोल दो कि नहीं मैम नहीं आता। नेक्स्ट अक्षा, अनम्यूट योरसेल्फ। अक्षा एब्सेंट हो गया बेटा? आर यू देयर? मैम ऐसे में वो है, लेकिन है ना ऐसे ही रहता है मैम, टाइम आउट चला जाएगा। इसलिए आप एक काम कीजिए, चैट बॉक्स में जो लोग मी लिख रहे हैं तो बेटा, आप उससे chat- पॉइंट पूछ लीजिए। बेटा आप सबसे ज्यादा बोल रहे हो मानो। हाँ, एक मिनट, सबको मौका देना चाहिए ना, नहीं तो ये पैसिव हो जाते हैं, ये बात नहीं करते फिर। अर्चित, चैट बॉक्स में तो वही लोग मी लिखेंगे जिनको आता होगा। हाँ जिनको आता है। मुझे तो सबसे पूछना है, पढ़ाया तो सभी को है ना। अर्चित एनी आंसर? यस और नो तो बोलने लायक है हम। मैम रिपीट क्वेश्चन। बेटा दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर बुक, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट। 5 ways in which you think the government affects your daily life. गवर्नमेंट आपके लाइफ को कैसे प्रभावित करती है? आपने सोचा है, सुना है, कभी न्यूज सुनी है? यस चेरी। अर्चित ने भी कोई जवाब नहीं दिया, ना अनम्यूट किया, ना हाँ और ना जवाब दिया। वेरी गुड। मैं इसके सामने ना, आपके नाम के सामने मैं लिख देती हूँ नॉट रिस्पॉन्डेड। ठीक है, यस नो कुछ भी नहीं किया। और एक क्लास में मैंने रिमूव भी कर दिया था बच्चों ने जब आंसर ही देना बंद कर दिया, तो फिर क्लास में होने का कोई मतलब नहीं है अगर आप यस भी नहीं बोल पा रहे हो अनम्यूट करके और नो भी नहीं बोल पा रहे हो। क्यों अर्चित? अगर आप मुझे सुन रहे हो तो अनम्यूट करो, फिर मैं रिमूव कर दूंगी आपको मीटिंग से। मतलब नहीं है आपका क्लास में रहने का अगर इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्ड। नो रिस्पॉन्स एट ऑल। अक्षा, कोई रिस्पॉन्स नहीं है आपका, या तो आप सिर्फ चले जाते हो। तो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते? यस नो तो बोलो अक्षा। मुझे कैसे पता चलेगा आप क्लास में हो मेरे? सिर्फ ज्वाइन करने से। अभी माइक खोला था उसने। अभी खोला है माइक, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ। हम कभी किसी को आप मुझसे कोई बात करो और मैं आपको हाँ और ना कुछ भी नहीं बोलूं, कैसा लगेगा आपको? मैम अच्छा नहीं लगेगा। पूछते रहो, मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूंगी। किसी एक बच्चे को कोई रिस्पॉन्स नहीं दूंगी, अगले दिन आप देखो कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे। तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ क्या? अलग है। रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है। आपको नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्ड तो करो कि यस मैम मुझे नहीं आ रहा है, मुझे पता नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है, कुछ तो बोलो आप। चेरी? Yes, ma'am. Ma'am, government supplies water properly, and when the water is not supplied perfectly, it takes action on it. Yes. देखो अब जिसको भी नहीं आता है प्लीज एक पॉइंट नोट कर लो, गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ द सप्लाई ऑफ वाटर।
ये हमारे डेली लाइफ को प्रभावित करता है। अगर पानी नहीं आ रहा है तो वो भी अरेंजमेंट करके देगी हमें, कुछ तो अरेंजमेंट करेगी जिससे हमको पानी मिल सके, मिनिमम नीड के लिए हमारे पानी अवेलेबल हो पाए। ठीक है, मैम यस रिपीट, गुड। मैम रिपीट। टेक केयर ऑफ सप्लाई ऑफ Vedansh? वाटर। Ma'am, can I Government Vedansh? takes care of supply of water. Okay. Ma'am, Yes. Devanshu. Yes, ma'am. One. Hmm. Government maintain the price of vegetables when they are too expensive. Yes, very good. Government maintain the prices of the things. अगर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है ना तो गवर्नमेंट उसको लोअर डाउन करवाती है। वो व्यापारियों से बात करके एक रेट फिक्स कर देती है जिससे कि आम जनता उस चीज को खरीद पाए। ठीक है, इसलिए आप देखोगे कि गवर्नमेंट प्राइस जब सेट कर देती है तो उससे महंगी चीज हो ही नहीं सकती है, कम हो जाएगी। वो उतना व्यापारियों के साथ में उनको कुछ हेल्प कर देती है जिससे कि प्राइसेस कम कर दिए जाते हैं और वो सभी लोग खरीद सकते हैं। तो गवर्नमेंट फिक्स प्राइसेस ऑफ फ्यू वेजिटेबल्स और यू कैन से अनियंस, या जो ऐसी चीजें जो जरूरी चीजें हैं बट बहुत कॉस्टली हो जाती है किसी टाइम में, या तो उनकी लेस सप्लाई की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से, तो गवर्नमेंट उनकी प्राइसेस फिक्स कर देती है या लोअर डाउन करती है सो दैट ऑल विल एबल टू बाय दैट पर्टिकुलर थिंग। वेरी गुड। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट फिक्सेस द प्राइसेस ऑफ गुड्स दैट वी नीड एवरी डे। मैम मैं बताऊं एक और पॉइंट। हाँ धवल, यस मैम जो गवर्नमेंट वो भी ठीक करती है, हाँ करवाती धवल, है। मैम जो क्या चीज? गवर्नमेंट होती है वो रोड भी ठीक करवाती है। यस, गवर्नमेंट ma'am, रोड yes, भी ma'am, ठीक कराती है, मेंटेन करती है रोड्स को। मैम मैं बताऊं, मैम मैं बताऊं। ओके, वेरी गुड। मैम वो जो गड्ढे होते हैं उनको फिल कराती है। हाँ, गड्ढों को फिल करती है। ध्रुव का मैम जैसे कभी मैम जाम लग गया ना बीच में ही और गड्ढे हो रहे तो फिर वो गवर्नमेंट को करेगी। मानव वगैरह हाँ, बोलना है। ma'am, बेटा मैं एक बीच और में अकेले नहीं बोलो, नो, मैं अभी सभी के साथ सामने आ रही हूँ। ठीक है ध्रुव, कोई पॉइंट नहीं ऐड करना बेटा, ये जनरल पॉइंट्स हैं। हम सरकार की बात इतनी करते हैं कि हम सरकार के बारे में जानते हैं। सिंपल सा जो क्वेश्चन है वो ये है, क्या हम सरकार को जानते हैं? नहीं जानते ना। हम सरकार को इतना क्रिटिसाइज कर लेते हैं, उसकी इतनी बुराई कर लेते हैं, पर सरकार क्या क्या करती है भी हमें नहीं पता अभी भी, है ना। दिव्या, एनी वन पॉइंट? यस मैम, बट इट टेक्स एक्शन ऑन सोशल इश्यूज। हाँ, इट टेक्स एक्शन ऑन सोशल इश्यूज। लाइक कहीं पे कोई समाज के बारे में हो रहा है, कास्टिज्म से रिलेटेड कोई इश्यू हो गया है, तो वो ऐसे रूल्स बनाती है जिससे कि ये कास्टिज्म वगैरह या सोशल इश्यूज को दबाया जा सके और लोगों को पैसिफाई किया जा सके, शांत किया जा सके, है ना। अगर कोई दंगा आ रहा है, दंगे हो रहे हैं, तो उनको वो शांत कराने की कोशिश करती है, उनकी बातों को सुनती है, तो वो सोशल इश्यूज को भी हैंडल करती है। ठीक है, राइट डाउन, it handles the social issues. It handles the social issues. Janvi, give me a point. Yes ma'am. Ma'am, supply of electricity. Very good. Takes care of supply of electricity. Provide electricity. ma'am, can I? Beta, I'm coming. Vedansh, just wait. Coming. Jia. यस मैम। मैम जो गवर्नमेंट होती है, जो लोग अवेलेबल नहीं होते हैं जो लाइट का बिल देने के लिए, उसे बिल को वो कभी कभी माफ कर देते हैं। ओके, जो लोग बिल नहीं दे पाते तो वो सोशल इश्यूज या लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते हुए उनके फेवर में भी कुछ डिसीजंस लेती है। तो गवर्नमेंट मेक पॉलिसीज इन फेवर ऑफ पुअर पीपल। Government make policies or schemes in favor of poor people, okay, or disabled or those who are not able to meet their needs. जो अपनी जरूरतें नहीं पूरी कर सकते, those who are not able to fulfill their needs, उनके फेवर में भी स्कीम्स लाती है, उनको हेल्प करने की कोशिश करती है by making schemes. Okay, yes, next, Mahesh, government makes schemes और take care, क्या बोला था जिया ने? मैम वो माफ मतलब है ना जो लाइट और माफ कर दे। यस, है ना। जैसे किसानों की फसल खराब हो जाती है, किसानों के पास पैसा नहीं है,
तो उनका कर्ज माफ कर देती है, उनका लोन माफ कर देती है, या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देती है। तो ऐसे ही अगर गरीब लोगों के पास खाने पीने का इंतजाम नहीं हो पा रहा है तो बहुत सारी चीजों की माफी दे देती है उस समय के लिए, कुछ समय के लिए, 1 साल के लिए, या पूरी तरीके से। ठीक है, तो गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ पुअर पीपल, इट मेक्स स्कीम्स बनाती है, प्लान्स बनाती है, उनको सपोर्ट करती है। यस महेश। जिनके पास कोई जॉब नहीं है तो उनको जॉब देते हैं, जिसकी वजह से वो अपना फूड अफोर्ड कर सकते हैं। Government creates employment for the non-employed people. एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, फैक्ट्री बनाती है जिससे लोगों को काम मिल सके, कहीं कुछ और चीजों की चीजों की एस्टैब्लिशमेंट करवाती है जिससे लोग वहां पे काम कर सके और अर्निंग कर सके। तो गवर्नमेंट क्या करती है, रोजगार बनाने के उपाय देती है, रोजगार क्रिएट करने के, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। It create employment for the non-employed or non-employed people. Okay. Manasva, any other point? अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैम गवर्नमेंट गरीबों को बना के देती है। क्या देती है गवर्नमेंट प्रांजल? मैम गरीबों Yes, को ma'am. बनाती है। हाँ, गरीबों को घर बना के देती है। ओके ओके गुड। मनस्वा, गवर्नमेंट गरीबों को फूड प्रोवाइड करती है। फूड प्रोवाइड करती है। ओके, मानव की बात मैम वो उनके वेलफेयर को देखती है। गवर्नमेंट लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल। हाँ, गवर्नमेंट लुक आफ्टर द वेलफेयर, लुक आफ्टर द पुअर पीपल और फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल। गवर्नमेंट, Can I add one more point? जस्ट वेट बेटा, चेरी हो सकता है जिनके बारे में हम ऐड कर दे। प्रणव, मैम मेरी चांस ओके मानव मैम, बोलो। मानव की चांस मैम, हाँ, मानव बोलो। it provides health facilities. It provides basic facilities. Very good. Pranav, मैम मैं बता सकता हूँ। Yes, ma'am. take Pranav, any one point? Just add one point. Can I say one extra point? No बेटा, दिव्य just wait. प्रणव, कुछ है बोलना है? मैं आगे बढ़ूं? No, ma'am. Okay. मैम प्रवीण, आई मैम अभी भी 3 पॉइंट बच गए। Yes, ma'am. Govern the country according to the law. मैम क्या हाँ, नाम है? government governs the country according to the law. Yes, वेदांश बोलो, आप बोलो। मैम मैम वो गवर्नमेंट मेक्स रेलवे लाइन। Yes, railway lines. मैम Very good. तन्मय, Ma'am, it runs our railway system. मैम जहाँ पे जाना मुश्किल होता है। yes, very good, very good. जहाँ पे जाना मुश्किल होता है वहाँ पे जाने की। गवर्नमेंट के कहने से ही जो कचरा गाड़ी चलती है। ओके फाइन, वेरी गुड। Ma'am, गवर्नमेंट के देखो, कहने से ही कचरा Ma'am, या विलेजेस के रखरखाव या कंट्री के रखरखाव या उसकी Ma'am, to build schools. स्वच्छता अभियान। मैम जब किसी के घर में मैम भारत अभियान। गवर्नमेंट प्रोवाइड आया। किसका नंबर नहीं आया? Ma'am, they build school. तन्मय से तो पूछ रही हूँ। मैम कोई बताने ही नहीं देता। तो मैं तो पूछ रही हूँ ना, मैं सुन तो रही हूँ आपको जब मैं आपका नाम बोल रही हूँ। Yes, तो ma'am. come on. हाँ, मैम फर्स्ट है गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स आवर इंडिया। हाँ, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स द बाउंड्रीज ऑफ द Our कंट्री। boundaries. हाउ? यस मैम। ओके, यस। रुद्र, एनी अदर पॉइंट? मैम और वो जो गरीब लोग रहते हैं उनके लिए स्कूल्स बनाती है, गरीब बच्चों के लिए। हाँ, ये स्कूल वाला किसी और ने भी अभी ऐड किया था पॉइंट। रुद्र, आप ऐड घर वाला किया था कि गरीबों के लिए घर बनाते हैं। एक सबसे अच्छा पॉइंट था। मैम वो प्रांजल ने किया था कि सारे लोग गरीबों के बोलने लिए लग घर गए। बनाते हैं। मैम क्या नहीं? वही तो है, इसीलिए मैं सभी से नहीं पूछ रही हूँ।
मैम अपने Government प्राइम maintains law and order. Main point. Government maintains law and order. मैम गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए क्या करती है? यस चेरी, मैम वो रूल बनाती है। रूल बनाती है चेरी। मैम फॉर पुअर पीपल। हाँ, यस मैम वेदांश, मैम गवर्नमेंट वेदांश मैम एक किसी भी मिनिस्टर को चुनने के लिए इलेक्शंस करवाती है। इलेक्शंस करवाती है। ओके फाइन। Ma'am, दिवांशु, government maintain relations with other countries. हाँ ओके, सो यू हैव टू राइट एनी 5 पॉइंट्स। ओके, जो आपको लगता है कि आपको याद नहीं रह सकते वो वाले पॉइंट्स आप लिखेंगे। मैम मैंने 8 ठीक है, गवर्नमेंट, वेरी गुड। जो पॉइंट्स आपको जल्दी से याद नहीं आते वो पॉइंट ही लिखेंगे आप सोचकर, जो याद है वो नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि वो तो वैसे ही याद है आपको। ओके, कमिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, इज क्लियर टू ऑल? यस मैम, यस मैम। मैम वो वाला पॉइंट बोल दीजिए। कौन सा पॉइंट? मैम आपने बोला था ना वो चलिए। सबसे अच्छा पॉइंट है। इट मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम करती है। इसके लिए वो पुलिस की मदद लेती है, कोर्ट्स की मदद लेती है, दूसरे लोगों की मदद लेती है, ऐसे लोगों को अपॉइंट करती है जो इस चीज को देखभाल करें कि कहीं पे कोई दंगा ना हो जाए, कोई स्ट्राइक ना हो, कोई गलत काम ना हो। ठीक है, चलिए मैम डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ यस मैम ये जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट के पास तो जाता है, पर मैम जो प्राइम मिनिस्टर होता है उनके पास जाता है या राज्य के जो सीएम होते हैं उनके पास जाता है? हाँ मैंने आपको हाँ लेवल थे बेटा। जो देखो, जब टैक्स इकट्ठा होता है ना तो ये एक सिस्टम बना हुआ है कि कहाँ पे कलेक्ट होता है। जब सारा टैक्स इकट्ठा होता है तो इसका बंटवारा होता है काम कराने के लिए। जो आपकी ये 4 लेन रोड आप देखते हो ना गुना में बनी है, ये सरकार का पैसा नहीं है, आपका पैसा है। आपके पेरेंट्स ने उसमें टैक्स के रूप में दिया है। हमने जो भी वर्किंग है सबने टैक्स पे किया है। सरकार के पास जो पैसा आया उसने स्टेट गवर्नमेंट को दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स दिए और कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया या किसी व्यक्ति को बोला, उसको पेमेंट किया, तब जाके ये रोड बनी। गवर्नमेंट ने अपने पास से कुछ नहीं निकाला, आपके पैसे तो आपके लिए मदद करने का काम किया। मैम जैसे मतलब कुछ भी चीज मतलब अपन ऑनलाइन लेते हैं टैक्स लगता है, पापा कुछ भी चीज अपन बैंक में भरते तो जीएसटी टैक्स उसमें लगता है, तो वही पैसा वो गवर्नमेंट लगाती है। हाँ मैम ऐसे भी जो बुक्स का मैम फिर बुक्स भी वो गवर्नमेंट बनाती तो फिर उन्हें उससे कुछ फायदा होता है? जैसे सबसे हर चीज से जो भी टैक्स लेती है वो हमारी कंट्री के वेलफेयर के लिए यूज करती है। जहाँ पे जो चीज चाहिए, अगर किसी जगह पे स्कूल नहीं है तो गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को या लोकल गवर्नमेंट को वो पैसे देकर बताती है कि ये काम वहां करवा दो। ठीक है, तो जो लोग एबल हैं, जो टैक्स पेई हैं, वो टैक्स जब भरते हैं तो पूरी कंट्री के वेलफेयर के लिए काम में आता है, जिसमें हमारा भी भला होता है। अब आपको अगर रोड पे जाना है तो आप अपने घर के साइड की रोड तो सिर्फ नहीं बनाओगे ना, आपको गुना तक जाना है तो आपको चाहिए कि गुना तक रोड हो मेरे पास। तो वो सभी का पैसा मिलाकर सभी ने जो टैक्स पे किया होता है, इसीलिए टैक्स की चोरी के लिए बार बार मना किया जाता है कि टैक्स मत बचाओ। टैक्स मिलेगा सरकार को तो आपके लिए काम होगा। ठीक है, तो टैक्स हम देते हैं तो सरकार हमारे लिए काम करती है। उसके पास कोई पेड़ नहीं लगा हुआ है कि रुपए तोड़ तोड़ के वो हमारा काम कर सके। ओके मैम हम ये नहीं हम सोचते हैं कि वो हमारे टैक्स लेके हमारे पैसे लेना चाहती है, लेकिन वो हमारे भले के लिए हमारे लिए काम करती है बेटा। अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो कहाँ से लाएगी? यस मैम, ये जो इसरो होती है, जो ये रॉकेट छोड़ते हैं, बहुत पैसा लगता है, टैक्स ही होता है सारा। होता है, गवर्नमेंट कोई अपना पर्सनल पैसा नहीं पे करता है। मैम एग्जांपल दूं? हाँ बोलो। मतलब जब भी मैम जिसको मैम जितनी मैम जैसे किसी पर्सन को, इंजीनियर को 50,000 सैलरी मिल रही है तो मैम उसमें से वो लोग 15,000 तो ले लेते हैं। मैम उनकी सैलरी के हिसाब से मैम उनका आधा या आधा नहीं, जितनी सैलरी उसकी बनती है साल में उसके ऊपर कुछ रेशियो फिक्स रहता है बेटा।
है ना, उसके हिसाब से उसको टैक्स पे करना होता है, ठीक है। अगर किसी की इनकम उतनी ज्यादा नहीं है जितना हमारी लिमिट है सेट की, इस लिमिट पे पहुंचने के बाद ही टैक्स देना पड़ेगा। अगर उस लिमिट को आपने क्रॉस कर लिया है तो आपको देना पड़ेगा, अगर नहीं क्रॉस किया तो यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Why do you think the government needs to make rules for everyone in the form of laws? अब दूसरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछता है कि लॉज बनाने की ऐसी क्या जरूरत पड़ी है, गवर्नमेंट को लॉज क्यों बनाने चाहिए? मैम कैन आई? वन बाय वन बस। यस तन्मय, आपसे शुरू कर रही हूँ, बोलो। मैम वो लॉ इसलिए बनाती है कि कहीं पे झगड़ा ना हो। ओके फाइन, यस। जैसे पानी के लिए झगड़ा हो जाता है कि पानी Very नहीं आ रहा है। वेरी गुड। मैम टू मेंटेनेंस ऑफ पीपल्स एंड सिटीजन्स। फॉर द मेंटेनेंस, ओके वेरी गुड। प्रवंशिका। यस मैम। मैम जैसे कि ट्रैफिक में जो रूल्स होता है वो बनाती है ताकि जाम ना लगे। ओके वेरी गुड। सिग्नल्स। मैम टू प्रोटेक्ट पीपल्स। हाँ, टू प्रोटेक्ट द पीपल, यस वेरी गुड। अच्छा, ये सब करने से उसको क्या फायदा होता है? Ma'am, the government needs to make rules for everyone in the form of law, because by doing so, people can obey rules and thus the national as a whole read and secures people. ओके मैम लॉज बनाने से देखो, हाँ ये उनको ये फायदा होता है। जस्ट वेट, महेश इज स्पीकिंग, जस्ट लेट हिम कंप्लीट। महेश। यस मैम। मैम लॉज बनाने से लोगों को वो लॉज अच्छे लगते हैं, मतलब ओके ज्यादा प्रोटेक्शन या फिर ज्यादा मारपीट को हटाकर ओके फाइन। ज्यादा मेंटेन करे तो फिर ज्यादा अच्छी चीजें मेंटेन करे तो फिर वो लोग गवर्नमेंट को वोट करते हैं, इस वजह से गवर्नमेंट ये सब लॉज बनाती हैं ताकि उन लोगों को वोट मिले और ऐसे ओके सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके घर में अगर कोई रूल ना बनाया जाए कि आपको 7 o'clock तक उठ जाना है, आपको 10 o'clock ब्रेकफास्ट लेना है या 10 से पहले ब्रेकफास्ट ले लेना है, आपको 11 बजे या 10 बजे सो जाना है, आपको 2 घंटे या 1 घंटे टीवी देखना है, अगर ऐसे रूल्स नहीं बने हों तो क्या होगा? सब लोग मैम मम्मी पढ़ाई ज्यादा करवा मैम जो सारे वर्क है वो सही टाइम पर कंप्लीट नहीं होंगे। एग्जैक्टली आपकी क्लास में जो स्कूल में जो आप क्लास में पीरियड्स देखते हो, आप देखते हो कि 20 मिनट्स के पीरियड के बाद एक पीरियड चेंज हो जाता है, ठीक है, वो टीचर दूसरी क्लास में चला जाता है, आपका दूसरा पीरियड होता है, दूसरा टीचर आपकी क्लास में आ जाता है। अगर मान लीजिए ये टाइम पीरियड का जो रूल है ये नहीं बना हो तो एक टीचर पूरा टाइम लेता रहेगा, आप बोर हो सकते हो, आपको समझ में वो टाइम की कीमत समझी नहीं जाएगी और उसका मैटर नहीं समझेगा। उसकी जरूरत है वहां वो पहुंचेगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मजा आएगा। बिल्कुल। तो रूल्स को बनाने का सबसे मेन कारण क्या है कि जब रूल को हम फॉलो करते हैं तो सारी चीजें क्या होती हैं, प्रॉपर वे में चलती हैं। आपको राइट मिला है कि आप रोड पे चल सकते हो, सड़क पे आपका चलना अधिकार है, ठीक है, आपके घर में आपको शाउट करने का पूरा राइट है, फुल राइट है, यू कैन शाउट इन योर होम। लेकिन पड़ोसी को सिर दर्द हो जाए इस कॉस्ट पे बिल्कुल भी नहीं। पड़ोसी को सिर दर्द हो, लोगों को परेशानी हो इस कॉस्ट पे नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये रूल है कि अगर आप रात को 10 बजे के बाद शोर मचाओगे तो आपके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए आप देखोगे कि अब शादी ब्याह में भी बहुत रात तक बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर्स नहीं चलाए जाते, लाउड स्पीकर्स चलाने की मनाही है क्योंकि सभी की नींद खराब होती है। आपके घर में फेस्टिवल है ना, आप एंजॉय करो, पड़ोसी के घर में थोड़ी ना फेस्टिवल है, या पड़ोसी के घर में ओकेजन थोड़ी ना, मैरिज थोड़ी ना है। मैम एक रूल भी 10 o'clock से ऊपर कोई इसीलिए रूल्स है बेटा, रूल्स है, दीज आर रूल्स।
और ये इसीलिए है क्योंकि हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे ज्यादा तेज टीवी चलाने से पड़ोसी के घर में बहुत शोर जा सकता है, उसके घर में कोई मरीज हो सकता है, उसके बच्चों का एग्जाम हो सकता है, ये हम नहीं सोचते। या आपका पड़ोसी आपको परेशान कर सकता है, अगर कोई रूल नहीं होगा तो आप उसको जाके ये नहीं बोल सकते कि आप अपना माउथ ये कम कर दो। मैडम अगर पता है अगर उनके घर से अपन को आवाज आती है अपन तो लड़ने चले जाते हैं, लेकिन वो थोड़ी ना आते हैं। बस बहुत सारी चीजें हैं इसीलिए रूल्स हैं। हाँ, पीस बनाने के लिए हमको लॉज बनाने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। yes, to maintain the peace of the country, to live the life peacefully, to maintain law and order we need rules. अगर रूल्स नहीं होंगे तो कियोस हो जाएगा, सारी जगह अफरा तफरी मच जाएगी एंड पीपल विल नॉट लिसन टू एनीवन। अगर मैं रूल नहीं बनाऊंगी या रूल फॉलो नहीं करूंगी तो क्या होगा, मैं अपनी मनमर्जी, आप अपनी मनमर्जी। अभी जो हम रूल फॉलो करते हैं कि एक एक करके सब बोलो, सब एक साथ बोलेंगे तो किसको सुनाई देगा, ना आपको समझ में आएगा ना मुझे सुनाई देगा। दैट इज व्हाट रूल्स आर देयर टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। एक रूल बना है तो सभी को फॉलो करना मस्ट है, तभी सब शांति से रह सकते हैं, अदरवाइज नहीं रह सकते, अदरवाइज नहीं रह सकते। If you are not following any rule, you cannot say anybody that you have to follow this rule. आप अगर रूल फॉलो करोगे then only you have the right to say somebody कि आपको भी रूल फॉलो करना चाहिए। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल अधिकार नहीं है कि आप दूसरे को बोले तू ऐसे कर, नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। चलिए मैं इस आंसर का एक क्वेश्चन, मैम आंसर भी तो मैंने जो लिखा है। हाँ, बोलो बोलो बोलो। It makes laws for maintenance to protect people, to avoid riots, to maintain peace of the country, etc. हाँ, good. To maintain peace of the country, to run the government properly, to run the administration properly. Okay. ये फंक्शंस में भी आ सकते हैं। बिल्कुल, कहीं पे भी आ सकते हैं। हाँ, पूछो मैम। ये जो जैसे हर राज्य का एक सीएम होता है, वैसे फिर मैम ये मंत्री क्यों बोलते हैं? मंत्री क्यों बोलते हैं? मंत्री भी होते हैं ना। मंत्री किस लिए? मंत्री अलग अलग काम के लिए होते हैं, उनके अंडर में जैसे मैंने आपको बताया था बहुत सारी पोर्टफोलियोज होती हैं, पद होते हैं जिनके लिए जिनको काम डिवाइड करके दे दिया जाता है ना। अगर क्लास में एक मॉनिटर है तो मॉनिटर को ही तो सारी ड्यूटी नहीं है ना, उसके बीच में बहुत सारे बच्चों को कुछ ना कुछ ड्यूटीज मिली होती है। तो आप सब अगर मंत्री हैं तो आप अपने पूरे क्लास की देखभाल करते हैं। एक को इंग्लिश की मैडम ने मॉनिटर बना दिया, एक को उसको मैम ने बना दिया, एक को क्लास टीचर ने बना दिया, तो क्लास टीचर का रिप्रेजेंटेटिव क्लास टीचर का मॉनिटर है। बाकी सब्जेक्ट में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो केवल सब्जेक्ट के लिए देखते हैं, है ना। तो मंत्री जो होते हैं उनको अलग अलग ड्यूटीज मिली हुई, अलग अलग चार्जेस मिले हुए हैं, लेकिन सीएम उन सभी को देखता है। चीफ मिनिस्टर का है प्रिंसिपल सर हो गए, और प्राइम मिनिस्टर कौन हो गए? डायरेक्टर सर हो गए। टीचर्स क्या हो गए? मंत्री हो गए। नाउ आर यू गेटिंग मी? यस मैम। स्कूल एक कंट्री है तो सीएम कौन है? सारे क्लास टीचर्स। क्लासेस क्या है? सारी स्टेट्स हैं। स्टेट्स के अंदर भी हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बना दिए, हमने लोकल गवर्नमेंट बना दिए, ठीक है। हमारे ऊपर कौन काम कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन है? ठीक है। प्रिंसिपल सर के ऊपर भी कोई बैठा हुआ है, वो कौन है? डायरेक्टर सर। डायरेक्टर सर। Everywhere we find that administration is going on. एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए इसी तरीके से लोग हर जगह बटे हुए हैं, छोटे से लेके बड़े तक, ऑफिसेस से लेके बड़ी कंट्री तक, सब जगह ऐसे ही वर्क किया जाता है, छोटे छोटे हिस्सों में बांट। ठीक है, अभी क्वेश्चन डिस्कस कर ले। एक क्वेश्चन और हो जाएगा शायद, है ना। 2 ही क्वेश्चन और है बस अपने। नेम 2 एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी के 2 एसेंशियल फीचर्स। Ma'am, can I? Power to elect the leader. Ma'am, people had the power to elect the leader. Elect the leader. Okay, write down first point. People have power to elect their leader. So election is the key feature. Election is the key feature. What else? और क्या?
कौन से लोग वोट कर सकते हैं? इलेक्ट कौन कर सकता है? Adults, people. Adult franchise. Universal adult franchise is the second key feature. WAF मैम WAF Huh? UA. मैम UAF Universal adult franchise. So first is election, second is universal adult franchise. मैम तो इसको कैसे लिखेंगे पॉइंट को यूनिवर्सल एड वाला? Two essential features of democracy. In democracy, people have right to elect their Elect. right to vote or right to elect their representatives through elections. Okay, ये first point. Second, who will vote? People, all adults, 18 and above. They can vote, they can elect, or they can participate in election process. Okay, ये 2 point है. लास्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट वाज द सफरेज मूवमेंट? हमने बताया था सफरेज मूवमेंट क्या है, और अगर आपने से किसी चैप्टर पढ़ा हो तो इट इज वुमेन्स के पास उस टाइम राइट नहीं था कि वो Right to vote नहीं था वुमेन्स के पास. नहीं था. यू विल इफ यू हैव योर Poor have not नंबर the 32. right to vote. हाँ, टेक आउट पेज नंबर 32 इफ यू आर हैविंग बुक विद यू. यस मैम है ना? खोलो, देखो उसमें दिया हुआ है एक हाइलाइटेड पोर्शन पे वोट्स फॉर विमेन. Yes ma'am. Yes ma'am, लिखा है. हाँ, उसमें देखो what we have seen in the PPT, no, that is there. All over Europe and USA, women and the poor have had to fight for participation in government. Women's struggle to vote got strengthened during the First World War. This movement is called Women's Suffrage Movement. मैम ये लिखना है. हाँ, आप इसको अपने तरीके से लिखोगे ना बेटा. What did it accomplish? इससे क्या मिला? इसका रिजल्ट क्या हुआ? Accomplishment क्या थी? इसकी रिजल्ट क्या थी? What was the result of that? The result of this that the women and poor have was They got right to get the Yes, we got the right to vote. Okay, इसके बीच के भी कुछ क्वेश्चंस है, ये जो डिस्कस वगैरह दिए हुए हैं इसको जरा करके रखना, अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो आई सेंड इन द ग्रुप. ओके, सो नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट चैप्टर को लूंगी, क्योंकि हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं. की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री विच इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर ओनली, जो इसी चैप्टर से रिलेटेड है, इसलिए आपके पास थर्सडे तक का दिन रहता है. आप चैप्टर को रीड कर लें बेटा, यू विल अंडरस्टैंड बेटर. ओके, आप अच्छे से उसको समझ पाओगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर समझ में आ गया तो. हम लोग खुद से लिख लेंगे. Yes ma'am, बहुत इंटरेस्टिंग है. बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझना बहुत जरूरी है अपनी कंट्री को समझने के लिए, अपनी सोसाइटी को समझने के लिए बहुत जरूरी है बेटा. यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस. ओके, Ma'am, can anyone repeat the question number 3? Ma'am लिख नहीं पाई. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द टू मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? मेन फीचर मैं बोलूं? वोट एंड नहीं, उसको क्वेश्चन नहीं देखना था बेटा, क्वेश्चन ही चाहिए. अडल्ट फ्रेंचाइज. हाँ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड इलेक्शंस. मैं आपको बताऊं छात्रा. मैम मैं छात्रा आंसर बता रही हूँ. Shall we end the class? हाँ, गुड. ये हमको याद हो जाना चाहिए, इसको रटने की जरूरत है, समझने की जरूरत है. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्पिरिट और अंडरस्टैंड द टर्म, क्या है उसका कारण, क्या है, क्यों ऐसा कहा गया है. ठीक है, चलिए, गुड. इसको एक बार पढ़ लेंगे बेटा. ठीक है, क्लास एंड करूं मैं, इसके बाद यहाँ फिर एक और पीरियड है बेटा. ओके, Yes ma'am. ओके, लेट्स डू शांति पाठ बेटा. शांति शांति शांति. साई राम. Sai Ram. Sai Ram. साई राम. साई राम. Sai Ram ma'am.